Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 2 subject code BP503T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Dear learners, today we are going to discuss about the insulin and the glucagon. Now, these two hormones are responsible for the maintenance of the glucose in our blood. So, let us start with the learning objectives. At the end of this lecture, you people will be able to understand the concept and types of diabetes mellitus. You will be able to explore the biosynthesis, physiological as well as the pharmacological actions of the insulin and glucagon, and at the last of this you people will be able to analyze the different preparations available of insulin, their uses, adverse effects and drug interactions. So, let us start with the diabetes mellitus. So, diabetes is divided into two type of categories. The first one is known as DM, diabetes mellitus, and second one is known as diabetes insipidus. अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये जनरली होता है इंसुलिन के इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है, और ये होता है ADH के इम्बैलेंस की वजह से, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था जब हमने वैसोप्रेसिन या ADH पढ़ा था, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिकॉज वी हैव द डायबिटीज मेलाइटस, so today we have only focus on the diabetes mellitus. So what is diabetes mellitus? It is a disease which is abbreviated as DM, and it is a metabolic disorder which is characterized by different symptoms. The primary symptom is the hyperglycemia. Okay, ठीक है, यानी it is a metabolic disorder which is characterized by hyperglycemia. And what is the limit of that increase blood sugar in the different conditions? So if the patient is on fasting and if he have more than of 126 milligram per dl of glucose in the fasting condition, then you can say it is a diabetic, ठीक है. And if he have if we are checking the postprandial glucose and the readings are more than 200 milligram per dl, then we can say that patient is suffering from what diabetes mellitus, ठीक है. The another symptoms are polyphagia, polydipsia, polyuria, glycosuria, hyperlipidemia, negative nitrogen balance, ठीक है. What is these different terminologies? So polyuria, excessive urination होने लगेगा, ग्लाइकोसूरिया कह सकते हैं आप इसको, ग्लूकोज जो है वो यूरिन में आने लगेगा. पॉलीयूरिया इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड इन इंसिपिडस, सो इट इज लिटिल बिट सिमिलर इन बोथ द डिजीज, बट ग्लाइकोसूरिया इज एप्रोप्रिएट टर्म विच इज वी कैन यूज इन द डायबिटीज मेलाइटस. पॉलीफेजिया, यू कैन हैव अ ईटिंग हैबिट, ठीक है, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आप ज़्यादा खाने लग जाएंगे. पॉलीफेजिया, पॉलीटिप्सिया होने लगेगा, आप ज़्यादा पानी पीने लगेंगे, डिहाइड्रेटेड होने लगेगा आपका बॉडी, ठीक है. एंड समटाइम्स द पीपल आर ऑल्सो कंप्लेनिंग दैट दे हैव अ नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, दैट मीन्स द कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, ठीक है, विच इज द इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना. नाउ व्हाट हैपेंस जनरली इन डायबिटीज मेलाइटस, द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिकम्स थिकेंड, ठीक है ना. यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, एंड द सेल वॉल मैट्रिक्स एंड द प्रोलिफरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड विच विल लीड टू द ल्यूमन नैरोइंग, ठीक है. यानी ब्लड, जब आपका ब्लड वेसल का सेल वॉल मैट्रिक्स बढ़ गया, सेलुलर प्रोलिफरेशन, सेल्स का काउंट वहाँ बढ़ गया, तो क्या होगा, आपका जो ब्लड वेसल का ल्यूमन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है. यानी कि आपको कम ब्लड सप्लाई मिलेगा दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है. अर्ली एथेरोस्क्लेरोसिस इज ऑल्सो सीन इन सम पेशेंट्स, ठीक है. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का स्क्लेरोसिस हो जाता है. रेटिनोपैथी है, आपके रेटिना में ब्लड सप्लाई कम जाने लगती है, जिसकी वजह से आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं या ऑकुलर प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है. नर्व्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं करती हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है. एंड समटाइम इट ऑल्सो लीड टू द नेफ्रोपैथी और द पेरिफेरल वेस्कुलर इनसफिशियंसी. नाउ जनरली डायबिटीज मेलाइटस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है. द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. नाउ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है. एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज द डायबिटीज मेलाइटस विच ओनली ट्रीटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है. इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है. वी डोंट हैव एनी सेकंड ऑप्शन अवेलेबल फॉर दिस. हाँ, ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल
जुवेनाइल क्यों है? बिकॉज दे आर वेरी कॉमनली सीन इन द चिल्ड्रंस एंड द यू कैन से द चिल्ड्रन, यू कैन से इन्फेंट्स, ठीक है ना, बिकॉज दे गेट दिस डिजीज फ्रॉम देयर गेस्टेशनल मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है ना. नाउ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, it is known as non-insulin dependent diabetes mellitus. As the name indicates, it doesn't depend on the insulin. So, for treating these NIDDM, we need anti-diabetic agents such as oral hypoglycemics and sulfonylureas, bigonides and A-carbox inhibitor. ठीक है. So, अगर हम बात करें what is the epidemiological difference between these two diabetes. So, the patient of IDDM is around 10%, whereas इसके जो पेशेंट्स हैं वो अराउंड 90% तक आपको देखने को मिलेंगे. हाँ, ठीक है. नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप 1 डायबिटीज, दैट इज आईडीडीएम. ठीक है. सो जनरली आईडीडीएम इज कॉज्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स. ठीक है. अब बीटा सेल्स हमने जब हम हार्मोन्स पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ डिस्कस किया था. पेंक्रियाज में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा. नाउ अल्फा सिक्रीट्स द ग्लूकागॉन, बीटा सिक्रीट्स इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सिक्रीट्स द सोमेटोस्टैटिन. नाउ यहाँ पर क्या होता है कि जो पेंक्रियाज में बीटा सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू द हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है. और इस इम्यूनिटी के हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से हमारी बॉडीज में कुछ एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि बीटा सेल्स को एक फॉरेन एंटीजेंस की तरह देख के और उसको डैमेज कर देते हैं. ठीक है. तो जैसे ही बीटा सेल डैमेज हुआ, इंसुलिन बनना बंद, और इंसुलिन बनना बंद हुआ तो इसका मतलब है इंसुलिन इज एंजाइम विच कंट्रोल्स द हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल रखता है. ठीक है. वंस द ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन द ब्लड, इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज होगा और उसको तुरंत नीचे ले आएगा, नॉर्मल ले आएगा. ठीक है. ग्लूकागॉन जो हार्मोन है वो ग्लूकोज, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा. ठीक है. दोनों मतलब आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रेरी रहते हैं एक दूसरे के. नाउ इन सम कंडीशंस द cause of the diabetes mellitus, that is IDDM, is not known. ठीक है. that is idiopathic. ठीक है ना. so यहाँ पर हमें पता ही नहीं होता कि because ये unknown cause होता है and that's why it is known as what type 1B. type 1A जो है वो autoimmune है, वो मैंने आपको बता दिया. ठीक है ना. now in all the type of IDDM, the insulin level is low or you can say very low in the blood, and this will lead to the what hyperglycemia and later on the ketoacidosis. ठीक है ना. दिस इज वेरी, यू कैन से, लेस कॉमन डिजीज और हैविंग अ एपिडेमियोलॉजी आई ऑलरेडी मेंशन 10%, नॉट मोर देन 10%. ठीक है. एंड हैव ए लो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. ठीक है ना. नाउ अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में. ठीक है. टाइप 2 जो है वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे. ठीक है. तो इसको ट्रीट, क्योंकि एज द नेम इंडिकेट्स इट इज अ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. सो व्हाट वी नीड टू ट्रीट type 1? Insulin. So let's start with the insulin. Insulin is nothing, it is a hormone which is secreted by the beta cells of the pancreatic islet of Langerhans. It is discovered in 1921 by a very famous scientist known as Banting and Best. ठीक है. बेंटिंग एंड बेस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चेक किया था कि जो हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन है, ठीक है ना, अगर हम पैंक्रियास को काट के निकाल देते हैं तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है. ठीक है ना. तो वो उन्होंने चेक किया था और उन्होंने देखा कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है. तो उनको ये समझ में आ गया कि देयर इज समथिंग इन पैंक्रियाटिक आइलेट्स दैट इज कंट्रोलिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है ना. नाउ 1926 में इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया. ठीक है. प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और इसका स्ट्रक्चर 1956 में दिया गया बाय द डॉक्टर सेंगर. ठीक है. इनको बाद में चल के नोबेल भी मिला, मेंटिंग बेस्ट को भी बाद में चल के नोबेल मिला था. नाउ इंसुलिन जो है वो एक 2 चेन पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स, चैन ए एंड चैन बी. ठीक है. उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. तो इसका जो टोटल अमीनो एसिड का नंबर है वो है 51 अमीनो एसिड. ठीक है. और मॉलिकुलर वेट इज अराउंड 6000. ठीक है. नाउ द चैन ए कंसिस्ट ऑफ 21 अमीनो एसिड एंड चैन बी कंसिस्ट ऑफ 30 अमीनो एसिड. ठीक है. और ये दोनों चैन जुड़े रहते हैं एक सल्फाइड बॉन्ड से. ठीक है. उसको हम आगे समझ लेते हैं. ठीक है. नाउ एक ही नीचे टेबल दिया हुआ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल इंडिकेट दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग द इंसुलिन फ्रॉम योर बॉडी योर सेल्फ. ठीक है ना. सो what are the alternatives which will you can get
द इंसुलिन फ्रॉम, ठीक है ना. सो हियर द पॉर्क एंड द बीफ आर द वेरी एट दैट मोमेंट. हाँ, नाउ अब तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन आ गया है, तो अब तो हमारे को पॉर्क और बीफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है. बट स्टार्टिंग में हमको पॉर्क और बीफ को यूज़ किया गया, हमने यूज़ किया फॉर आइसोलेटिंग द इंसुलिन एंड टू एडमिनिस्टर दैट इंसुलिन टू द ह्यूमन बीइंग. बट देयर इज लिटिल बिट difference between the polypeptide, the location of the amino acids. See here, the 8th amino acid in human insulin consists of threonine, 10th consists of isoleucine and 30th consists of threonine. It means 8th and 30th have the threonine and the 10th consists of what, isoleucine. Whereas pork में 8th तो threonine रहता है, 10th भी आइसोल्यूसिन रहता है, बट जो 30th अमीनो एसिड है दैट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एलेनिन, ठीक है ना. यानी थ्रोनिन के बाद वो क्या आ गया, एलेनिन. बीफ जिसको हम काफ से मिलता है, गाय के बछड़े से जो हमें मिलता है, ठीक है ना, उसमें अगर हम बात करें तो 8th पे एलेनिन आ जाता है, 10th पे वैलाइन आ जाता है और 30th पे फिर से एलेनिन आ जाता है. तो अगर आप देखेंगे तो बीफ का जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो बहुत कम सिमिलर है, बहुत कम मैचिंग है हमारे ह्यूमन वाले से. बट इफ वी टॉक अबाउट पॉर्क, तो पॉर्क यानी जो हमें पिग से मिलता है इंसुलिन, उसकी सिमिलरिटी ज़्यादा, बस एक अमीनो एसिड का डिफरेंस है, दैट इज़ द 30th अमीनो एसिड, ठीक है. सो उस टाइम पर हम पॉर्क से ज़्यादा इंसुलिन कंज्यूम करते थे कंपेरेटिवली बीफ के, बिकॉज इट कॉजेज द इम्यूजेनिसिटी, ठीक है ना, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस को ये इंड्यूस कर देता था. Now let's move to the biosynthesis of insulin. So इंसुलिन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है. फिर वो प्री प्रो इंसुलिन जो है वो कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन में, और प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड में. सो हम देख लेते हैं इस डायग्राम को अच्छे से, ठीक है. तो जनरली क्या होता है, जो प्री प्रो इंसुलिन है ये दो टर्मिनल्स, जनरली अमीनो एसिड्स में दो टर्मिनल होता है, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल, ठीक है ना. तो एन टर्मिनल ये रहा और सी टर्मिनल जो है वो यहां पर है, ठीक है ना. नाउ इसमें अगर आप देखो तो जो सी टर्मिनल के पास जो चैन एसोसिएटेड है दैट इज व्हाट, ए चैन, और एन टर्मिनल के पास जो चैन एसोसिएटेड है वो क्या है, बी चैन, ठीक है. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका डिग्रेडेशन होता है, एन टर्मिनल जो होता है वो कटकर बाहर निकल जाता है इससे, और दिस विल फॉर्म द प्रो इंसुलिन, ठीक है. प्रो इंसुलिन में आप देखो तो सारी चीजें हैं, बस एन टर्मिनल जो था वो कटकर बाहर निकल गया, ठीक है. लेटर ऑन गोल्जी बॉडीज में जाने के बाद ये जो प्रो इंसुलिन है वो कन्वर्ट होता है दो चीजों में, द वन इज इंसुलिन एंड द सेकेंड वन इज सी पेप्टाइड, ठीक है ना. अब इसको समझ लेते हैं. अगर हम इंसुलिन देखेंगे तो इंसुलिन में आपको एक तो ये जो पिंक वाला है वो ए चैन है, इसको मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, और जो ब्लू वाला है वो बी चैन है. तो यहाँ पर दो बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं. एक बॉन्ड तो ऐसा है जो कि ए चैन के अंदर ही है, ठीक है, और दूसरा बॉन्ड जो है ए को बी से कनेक्ट कर रहा है, एंड दीज बॉन्ड्स आर नोन एज व्हाट, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है ना. तो दीज बॉन्ड्स आर अवेलेबल टू कनेक्ट द ए चैन विद द बी चैन, ठीक है ना. नाउ जब हम प्री प्रो इंसुलिन से स्टार्ट किया था हमने, तो हमारे पास जो अमीनो एसिड्स थे वहाँ थे 110 अमीनो एसिड, ठीक है. फिर इसमें से अमीनो एसिड्स कुछ कम हुए और ये बन गया 86 अमीनो एसिड, ठीक है ना. प्रो इंसुलिन जो है वो 86 अमीनो एसिड्स का होता है, और फिर बाद में ये कम हुआ और ये रिड्यूस होकर इसने इंसुलिन बना दिया 51 अमीनो एसिड्स का, और 36 ना, 35 अमीनो एसिड का क्या बन गया, आपका सी पेप्टाइड बन गया, ठीक है ना. अब हम इसको देख लेते हैं. इंसुलिन का जो हाफ लाइफ है इट इज अराउंड 6 मिनट, ठीक है. सी पेप्टाइड का जो हाफ लाइफ है दैट इज ग्रेटर देन द इंसुलिन, ठीक है. यानी सी पेप्टाइड हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा कंपेरेटिवली इंसुलिन के. लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस सी पेप्टाइड. सो सी पेप्टाइड इज द मार्कर which indicates if the C-peptide is available in your body in blood, ठीक है. It means the insulin synthesis and the secretion is normal in your body, ठीक है. तो C पेप्टाइड जो है वो एक आप कह सकते हो मार्कर की तरह काम करता है. Now let's move to the secretion of insulin.
अब इसमें देख लेते हैं जनरली होता क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोज होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो एक्सेसिव ग्लूकोज की वजह से वो ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर एंटर करना चाहता है, ठीक है ना। एंटर करने के लिए उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है दैट इज द GLUT2, ठीक है। ग्लूट का जो फुल फॉर्म है वो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। हाँ, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में ग्लूकोज जो है वो एंटर करता है, ठीक, पैंक्रियाटिक बीटा सेल में आ जाता है। बीटा सेल में आने के बाद ये ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है और बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है और फिर फॉस्फोराइलेशन के बाद बना देता है ये एटीपी। नाउ जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से एटीपी बनता है, दिस एटीपी विल इनहिबिट द पोटेशियम चैनल, ठीक है। यानी कि जो इफ्लक्स हो रहा था पोटेशियम चैनल का, उसको क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है। और जैसे ही ये पोटेशियम चैनल का इफ्लक्स जो है वो इनहिबिट हुआ, तो इसकी वजह से डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम और पोटेशियम एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं, आप समझ सकते हैं। कैल्शियम जो है वो एक्साइटेशन के लिए है और पोटेशियम जो है वो रिलैक्सेशन के लिए है। तो एक बार अगर पोटेशियम बंद हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और कैल्शियम का लेवल बढ़ने की वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा और ये कैल्शियम जाकर हमारे जो ग्रेन्यूल्स हैं, कहाँ पर थे ग्रेन्यूल्स, आपके गोल्जी बॉडीज के साथ जो एसोसिएटेड पैकेट वेसिकल्स में स्टोर था, उन ग्रेन्यूल्स के ऊपर एक्शन देगा और हाइपर या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, हाइपर एक्साइटेशन या हाइपर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एक्सोसाइटोसिस होगा इन ग्रेन्यूल्स का और दिस विल लीड द रिलीज ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म बाय विच द इंसुलिन सिक्रेटेड, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हुआ, उसको GLUT2 ने अंदर ट्रांसफ़र किया, अंदर ट्रांसफ़र की वजह से वो ग्लूकोज अंदर आया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फिर वो एटीपी बनाया। जैसे ही एटीपी का लेवल बढ़ा, फॉस्फेट पोटेशियम का लेवल जो होगा वो, उसका जो इफ्लक्स है ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा और डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स और कैल्शियम की वजह से इंसुलिन का रिलीज जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। सो इट एक्ट्स बाय द टायरोसिन काइनेज पाथवे, जैक स्टार्ट पाथवे। दो सब यूनिट्स होते हैं इसके, ठीक है, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट, ठीक है। इंसुलिन आता है एंड इट बाइंड्स विद द इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। द इंसुलिन रिसेप्टर हैविंग टू सब यूनिट्स अल्फा एंड बीटा। नाउ बीटा इज एसोसिएटेड विद टायरोसिन प्रोटीन काइनेज। अब जैसे ही ये उससे बाइंड करता है, इस टायरोसिन काइनेज का क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है एंड दिस फॉस्फोराइलेशन विल लीड टू द स्टिमुलेशन ऑफ द what GNE. GNE is nothing, it is the guanidine nucleotide प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये गुआनिसिन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है और एक्टिवेट कर देता है जीटीपी को कन्वर्ट करके आपके जीडीपी में, ठीक है। उसी के पैरेलल में IRS जो है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, उसका भी फॉस्फोराइलेशन होता है और उसके फॉस्फोराइलेशन की वजह से, ठीक है, IP3 या PI3 काइनेज जो है वो एक्टिवेट होता है और ये एक्टिवेशन जो होता है ये लीड करता है एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम और इनहिबिशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम, ठीक है, विच इज जनरली ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करने के लिए ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसी के पैरेलल में ये एक प्रोटो ऑन्कोजीन होता है जिसको हम कहते हैं रास, विच इज रेगुलेटर ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक। ये रास का भी एक्टिवेशन होता है जो आगे चलकर मैप काइनेज को स्टिमुलेट करता है और मैप काइनेज के स्टिमुलेशन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है डीएनए में और ये आरएनए में, और आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने की वजह से नए नए प्रोटीन्स बनते हैं जो आगे चलकर प्रोलिफरेशन, सेलुलर फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंसुलिन आया, बाइंड किया रिसेप्टर से, बाइंड करने के बाद उसने इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट को एक्टिवेट किया, साथ में उसने रास को एक्टिवेट किया और इधर पैरेलल में उसने IP3 को भी उसने स्टिमुलेट कर दिया। नाउ अगर हम बात करें इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए, तो जनरली ये जो पाथवे है दिस इज द हार्मोनल पाथवे, इसको हम कहते हैं हार्मोनल पाथवे, ठीक है। तो हार्मोनल पाथवे में देखो अगर, तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अल्फा से ग्लूकागॉन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन। तो अगर आप देखोगे तो सोमैटोस्टैटिन जो है वो इंसुलिन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट कर रहा है, सोमैटोस्टैटिन ग्लूकागॉन को भी इनहिबिट कर रहा है, वेयर एज इंसुलिन ग्लूकागॉन को भी ब्लॉक कर रहा है और बस ग्लूकागॉन को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका पाथवे हो गया रेगुलेशन ऑफ द हार्मोनल सिक्रीशन, ठीक है।
अगर हम बात करें तो इसको न्यूरल या ब्रेन भी इसको डील करता है, ब्रेन भी इसके रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। अगर एड्रेनर्जिक अल्फा 2 एक्टिवेशन हुआ यानी कि अल्फा 2 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन हुआ तो दिस विल लीड टू डिक्रीज इन द इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है। अगर बीटा 2 स्टिमुलेट हो गया तो ये सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। अगर मस्कैरिनिक स्टिमुलेशन हुआ या फिर वेगल स्टिमुलेशन हुआ तो दिस विल आल्सो इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। नाउ नेक्स्ट इज द मैकेनिकल और यू कैन से केमिकल रिलीज रेगुलेशन। यहाँ पर जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि एक्सेसिव ग्लूकोज जो है वो एंटर करेगा, इन्फ्लक्स होगा और इन्फ्लक्स होने के बाद वो एटीपी को स्टिमुलेट करेगा, फिर पोटेशियम को इनहिबिट और फिर उसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स और कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से कैल्शियम का इंसुलिन का रिलीज जो है वो देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट आर द एक्शन ऑफ द इंसुलिन? सो जनरली इंसुलिन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। जनरली ब्रेन में ये हंगर सेंटर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से सैटिस्फैक्शन नहीं होती, आपको ज़्यादा पॉलीफेजिया या ज़्यादा भूख लगने लगती है। इसके साथ साथ ये हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम कर देगा कि लीवर में से ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन हो रहा था यानी ग्लाइकोजेनेसिस जो हो रहा था उसको कम कर देगा। लिपोप्रोटीन के प्रोडक्शन को भी कम कर देगा, ठीक है। लीवर में आ जाते हैं तो लीवर में ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को तो कम कर ही रहा है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। साथ साथ में ये क्या कर रहा है, एक्सेसिव ग्लूकोज को कन्वर्ट करने लगेगा किसमें, ग्लाइकोजन में। ये लिपिड में कन्वर्ट करने लगेगा एक्सेसिव ग्लूकोज को और ये साथ साथ में इन्फ्लामेशन को भी रेगुलेट करने लगेगा। अगर हम बात करें तो पेरिफेरल मसल्स में ये अपटेक को बढ़ा देगा यानी ग्लूकोज का जो अपटेक है उसको इंक्रीज कर देगा। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस बढ़ा देगा, मसल्स में मास बढ़ाने लगेगा और साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को भी रेगुलेट करने लग जाए। एडिपोज टिश्यू में अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली आपके एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा प्लस लिपोजेनेसिस जो है उसको बढ़ा देगा और लिपोलाइसिस को कम कर देगा यानी फैट कम टूटेगा तो उसकी वजह से ग्लूकोज नहीं बनेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से, ठीक है। और साथ में एक्सेसिव जो है उसको कन्वर्ट करने लगेगा किसमें, लिपिड्स के अंदर, ठीक है। Now, what are the preparations which are available in the market of for the insulin? So generally हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो रैपिड एक्टिंग में जनरली आ जाता है इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूसिलिन एंड इंसुलिन लिस्प्रो। अब ये प्रिपरेशंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बोला कि पॉर्क और बीफ जो है वो अब आउटडेटेड हो गया है, ठीक है ना, अब उस पर लोग रिलाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग ऑन देयर ऑनसेट एक्शन एंड देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये इनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है। तो रैपिड एक्टिंग में जो ड्यूरेशन ऑनसेट एक्शन है दैट रेंजेस फ्रॉम 10 to 30 मिनट्स एंड जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट विल यू कैन से रिसाइड विद इन द 6 आवर, ठीक है ना। इसको हमें एडमिनिस्टर करना होता है बिफोर 15 मिनट और आफ्टर 15 मिनट ऑफ द मील, आफ्टर इमीडिएटली ऑफ द मील, ठीक है ना। खाना खाने के 15 मिनट पहले ले लो या खाना खाने के तुरंत बाद ले लो, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में अगर हम आए तो इंसुलिन रेगुलर जो है वो आ जाता है, ठीक है, इंसुलिन रेगुलर आ जाता है। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है दैट इज इंक्रीज्ड, यहाँ आप देखो तो 30 to 60 मिनट तक ये अपना ऑनसेट एक्शन स्टार्ट कर देता है एंड इट एक्शन रिसाइड विद इन द 10 आवर, ठीक है। इसको आप खाना खाने के 30 मिनट पहले आपको लेना पड़ता है, पोस्ट पैराइटल ग्लूकोज को ये नहीं कंट्रोल करता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग की अगर बात करें तो इंसुलिन एनपीएच जो है दैट इज वेरी फेमस, ठीक है, और जिसका जो ऑनसेट एक्शन है इट इज अप टू 120 मिनट्स या 2 आवर्स तक, ठीक है। और ये मोर देन 24 आवर्स तक हमारी बॉडी में अपना ड्यूरेशन शो करता है, ठीक है। बट इसका क्लाउडी अपीयरेंस होता है, इसकी वजह से थोड़ा इसका यूज जो है थोड़ा सा वो रहता है। लॉन्ग एक्टिंग में अगर हम बात कर लें तो हमारे पास इंसुलिन डेट्रीमर है और इंसुलिन ग्लार्गिन है, ठीक है। तो इंसुलिन डेट्रीमर और इंसुलिन ग्लार्गिन जो है इनका जो ऑनसेट एक्शन है दैट इज ऑल्सो नियर 2 आवर्स, ठीक है। बट इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट इज नियरली 24 आवर्स, ठीक है। और इसको हम कभी भी दूसरे इंसुलिन प्रिपरेशन के साथ मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द रिएक्शंस एसोसिएटेड विद द इंसुलिन। सो इंसुलिन का वजह से कई बार हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो एकदम ड्रास्टिक कम होने लगता है, ठीक है। इसमें स्वेटिंग, एंग्जाइटी, पैल्पिटेशन, ट्रिमर्स,
ठीक है, डिजीनेस, हेडेक, बिहेवियरल चेंजेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है, हाँ, हंगर होने लग जाता है, ठीक है। तो फॉर ट्रीटिंग दिस हाइपोग्लाइसीमिया व्हाट वी कैन डू, वी कैन एडमिनिस्टर ग्लूकोज, हाँ, एंड अराउंड 15 to 20 ग्राम ग्लूकोज हम ओरली दे देते हैं, विच विल रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सिम्टम्स, ठीक है। लोकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो जनरली स्वेलिंग, जहाँ हम इंजेक्शन दे रहे होते हैं, जनरली इसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो स्वेलिंग, एरेथ्रमा या फिर स्टिंगिंग साइट ऑफ इंजेक्शन पे देखने को मिलता है, या कभी कभी थोड़ा सा ब्लबिंग हो जाती है, लिपोडिस्ट्रॉफी हो जाती है लिपिड्स के वजह, डिपोजिशन की वजह से। एलर्जी, इडिमा, ये भी कॉमन साइड इफेक्ट है इसका, ठीक है, जो देखने को मिलता है इंसुलिन के प्रिपरेशंस के साथ। नाउ लेट्स मूव टू द ड्रग इंटरेक्शंस। तो जनरली जितने बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है ना, ये हाइपोग्लाइसेमिया को क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग कर देंगे, क्योंकि क्या कर रहे थे बीटा ब्लॉकर्स, ये हाइपोग्लाइसेमिया को ब्लॉक कर देंगे बाय इनहिबिटिंग द बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है ना, बीटा 2 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो ज़्यादा देर तक अपना एक्शन देगा, ठीक है। थायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दे ऑल्सो रेज द ब्लड शुगर एंड रिलीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंसुलिन, ठीक है। तो इनके साथ हमें इंसुलिन देखकर चलाना होता है। एक्यूट इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट द हाइपोग्लाइसीमिया एंड डिप्लीट द हेपेटिक ग्लाइकोजन, ठीक है ना। लिथियम, हाइडोज एस्प्रिन, थियोफाइलिन में ऑल्सो एसिटोनेट हाइपोग्लाइसीमिया बाय एनहांसिंग द इंसुलिन सिक्रीशन, यानी कि ये भी इंसुलिन के एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। नाउ व्हाट आर द यूजेज ऑफ इंसुलिन। तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में बहुत ज़्यादा चलता है, सॉरी टाइप 1 में सबसे ज़्यादा चलने वाला ये वो प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है, ठीक है। कई बार हमें, अगर हम बात करते हैं कि ये जनरली टाइप 1 डायबिटीज़ को कंट्रोल तो कर रहा है, ठीक है, उसके ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल अपनी जगह पर ले आ रहा है, ठीक है ना, बट इंसुलिन इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। कभी कभी टाइप 2 में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बढ़ने की वजह, ग्लूकोज बढ़ने की वजह से हमको इंसुलिन वहाँ पर भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर भी पोस्ट पैंक्रेटोमी में भी ये बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इसको देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इज द हार्मोन विच सिक्रेटेड फ्रॉम द अल्फा सेल्स एंड इट इज अ सिंगल चैन पॉलीपेप्टाइड विच कंसिस्ट ऑफ 29 अमीनो एसिड्स एंड मॉलिक्यूलर वेट इज अराउंड 3500। नाउ अब ये कैसे काम करता है, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ग्लूकोज लेवल हुआ तो उसके बाद तुरंत ही सिग्नल जाता है, ग्लूकोज सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज के कम होने की वजह से, क्योंकि ग्लूकोज कम हुआ तो एटीपी का लेवल भी कम होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो जो फॉस्फोराइलेशन होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो नहीं होगा, और एटीपी के कम होते ही पोटेशियम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन वाला स्टेप जो है वो गायब हो जाता है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो होता है वो ब्लॉक, मतलब आप ये कह सकते हो कि कैल्शियम जो है वो ग्लूकागॉन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्लूकागॉन का रिलीज जो है वो इस तरह से मेंटेन होता है। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। बेसिकली ग्लूकागॉन बाइंड विद द ग्लूकागॉन रिसेप्टर, इट एक्ट्स बाय द जीपीसीआर मैकेनिज्म, ठीक है। अब जैसे ही ग्लूकागॉन उस रिसेप्टर से बाइंड करता है, इट स्टिमुलेट्स द एडेनाइन साइक्लेज पाथवे, ठीक। एडेनाइन साइक्लेज पाथवे को स्टिमुलेट करता है तो इसकी वजह से आपको सीएमपी एक्टिवेट दिखेगा, और सीएमपी के एक्टिवेशन की वजह से प्रोटीन काइनेज ए जो है वो दिखाई देता है। पैरेलल में कई बार ये फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को भी स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से IP3 और डैग जो है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं, जो कि कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ा देते हैं। ओवरऑल जो ग्लूकागॉन का रोल जो दिखाई देगा, इसमें आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस दिखाई देगा बढ़ता हुआ। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द अदर सोर्सेज, नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो कम हो जाएगा, और ग्लाइकोलाइसिस जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन की अगर हम बात करें तो अल्फा जनरली ब्रेन में सैटाइटी को प्रोड्यूस करता है, हंगर को एकदम कम कर देता है, ग्लूकोज आउटपुट को कम कर देता है। लैंगरहैंस पे ये हार्मोन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है इंसुलिन के, ठीक है। लीवर में हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को बढ़ा देगा, लिपिड के ऑक्सीडेशन को बढ़ा देगा, लेकिन लिपिड का जो सिंथेसिस हो रहा था उसको ये क्या कर देगा, कम कर देगा। किडनी में वाटर रीअब्जॉर्प्शन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा डायलिसिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। एडिपोज टिश्यू में ये लाइपोलाइसिस बढ़ा देगा, और जीआईटी में मोटिलिटी को ये क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द यूजेस, जनरली ग्लूकागॉन यूज़ किया जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया में, जहाँ पर आपको बहुत कम हो गया ग्लूकोज का लेवल, वहाँ पर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो डोज है दैट इज़ 0.5 to 1 मिलीग्राम IV और IM, ठीक है। और
कार्डियोजेनिक शॉक में भी इट इज़ वेरी कॉमनली यूज टू स्टिमुलेट द हार्ट विद द बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज, ठीक है ना। एक्शन बीटा ब्लॉकर्स की वजह से कई बार कार्डियोजेनिक शॉक लगते हैं, तो उसमें भी ग्लूकागॉन जो है दैट इज़ वेरी अफेक्टिव। नाउ दीज आर द रेफरेंसेस फॉर योर एक्सटेंडेड स्टडी, ठीक है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू।